Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class grade 12. Hopefully students all of you would be fine. Students, you are attending your online lecture and I hope you are getting the all benefits of the knowledge which are shared by me in the last chapter. Today we are going to start our second chapter of organic chemistry and that is actually the chapter number 16 in your textbook, hydrocarbon. Objectives of the chapter are definition of hydrocarbon, types of hydrocarbon, open chain or acyclic hydrocarbon, closed chain or cyclic hydrocarbon, alkanes, cycloalkane, radical substitution reaction, alkenes, isomerism, alkyne, benzene and substituted benzene, society, technology and science. Today's topic of the lecture are definition of hydrocarbon, types of hydrocarbon, open chain or acyclic hydrocarbon, closed chain or cyclic hydrocarbon, and alkane. Hydrocarbon, first of all, the definition of hydrocarbon as a term indicating the hydro for the hydrogen and carbon you know very well, that is actually the main constituent of organic chemistry. So students, definition of hydrocarbon, that is actually the organic compounds which contain carbon and hydrogen only are called the hydrocarbon. Catenation, the ability of carbon atom to attach with other to form a chain or ring is called the catenation. Students, let me tell you, because of this property of the carbon can form single bond, double bond, triple bond or in the form of ring with other carbon atom. And students, इसी property ही की वजह से हमारे सामने कार्बन के a lot of compounds we can obtain, we can synthesize in the laboratory. Okay. Now, types of hydrocarbon. Types of hydrocarbon, students. Hydrocarbon mainly divided into two forms, open chain and closed chain. Actually, students, hydrocarbon have been divided into various classes on the basis of their structure. You may see, students, that open chain or cyclic further divided in two forms. That is the saturated and unsaturated. Saturated include the alkane. You know very well, alkane compounds are those compounds in which between two carbon atoms single bond are present. In unsaturated hydrocarbon include the alkenes. Alkenes are those compounds in which between two carbon atoms double bond are present. Second further division of the unsaturated hydrocarbon, that is the alkyne. And alkyne are those compounds in which between two carbon atoms triple bonds are present. Now come to the closed chain. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको नाम से ही लग रहा है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच cycle form of hydrocarbon are present. Let me draw it again. Cyclic mean आपके पास कुछ इस तरह से रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. क्लोज चेन और साइक्लिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, एलिसाइक्लिक और साइक्लोअल्केन. एलिसाइक्लिक और साइक्लोअल्केन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे पास साइकिल की फॉर्म में कंपाउंड्स होते हैं, मौजूद होते हैं, बट उनके दरमियान में किसी किस्म की ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. तो इनको कहते हैं हम एलिसाइक्लिक और साइक्लोअल्केन, राइट. नाउ कम टू द एरोमेटिक. एरोमेटिक मीन्स विद रिंग एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे सामने. साइक्लोहेक्सेन में दरमियान में हमारे पास या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और या फिर हमारे पास रिंग फॉर्म हो जाती है इस तरह से. तो इनको कहा जाता है वो कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, वो साइक्लिक कंपाउंड जिनमें हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो या फिर रिंग फॉर्म हो शो करें, उसको कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. Let me tell you students, in this chapter we will study about all these branches. Means we will study in detail about the open chain. We will study about the open chain. In open chain we will study about the alkane. And in open chain we will study about the alkene. Then we will study about the alkyne. Then cycloalkane and in benzene.
We will study all these compounds in detail in this chapter. First of all, first branch is the open chain or acyclic hydrocarbon, which are further divided into two forms. First is the saturated hydrocarbon, and second form is the unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons, which are mainly alkanes, you know very well about the alkanes, and which are also known as the paraffins. इनको paraffins क्यों कहा जाता है? Because they have a little affinity or little attraction for the other compounds or other elements. ठीक है? They are known as saturated hydrocarbon. इनको saturated क्यों कहा जाता है? Because no further atoms or group of atoms can be attached to the carbon atom. Why? Because the four bonds of a single carbon are completely satisfied with the other hydrogen or carbon, and they are bonded by the sigma bond. स्ट्रांगली सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन या कोई भी हमारे पास बॉन्ड अवेलेबल नहीं होता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपने साथ अटैच करने के लिए. ठीक है? एंड यू नो वेरी वेल दैट सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ठीक है? फर्स्ट पॉइंट इज द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक है? आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तमाम में. सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है दे आर द sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यू नो वेरी वेल इन लास्ट सेशन इन फर्स्ट ईयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है? तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं. दे मे हैव स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. ठीक है? स्ट्रेट फॉर्म में भी और ब्रांच में भी हो सकते हैं. दे इंक्लूड ओपन चेन एज वेल एज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. क्लोज चेन और रिंग दे आर कॉल्ड द साइक्लोअल्केन. ठीक है? जिसमें हमारे पास मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं होते हैं या रिंग फॉर्म नहीं होती है. ठीक है? तो इनको साइक्लोअल्केन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन. नाउ कम टू द सेकेंड टाइप दैट इज़ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब इनको अनसैचुरेटेड का मतलब ये कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि हम इसके जो सेकंड बॉन्ड, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जब यहाँ पर दो बॉन्ड जो बने हुए हैं तो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है. और ये जो पाई बॉन्ड हमारे पास होता है दैट इज़ एक्चुअली द वीक बॉन्ड. ठीक है? ये हमारे पास वीक बॉन्ड होता है जिसको हम ईजिली ब्रेक करके किसी भी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को इसके अंदर ऐड करा सकते हैं. ठीक है? इस वजह से इनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ईजिली अपना पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और अपने साथ किसी भी एटम को अपने साथ अटैच कर लें. ठीक है? द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अल्कीन्स और ऑल्सो नोन एज अल्कीन्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड विच हैव द डबल बॉन्ड. Alkenes are also known as olefins. Olefins like means oil like. इनका जो थोड़ा नेचर जो होती है वो ऑयल लाइक होती है. एंड सेकेंडली जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको अल्काइन कहा जाता है. एंड अल्काइन आर ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन. ठीक है? एसिटाइलिन दैट इज एक्चुअली द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइन. एंड वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ देम, देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास अल्कीन के अंदर. अल्कीन के अंदर हमारे पास होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और अल्काइन के अंदर हमारे पास होती है sp हाइब्रिडाइजेशन. एंड सेम लाइक अल्केन्स दे मे हैव स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. हमारे पास स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द सेकेंड दैट इज़ अ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा टेबल की जब हमने आपको समझाई थी उसी वक्त मैंने आपको बता दिया था कि एलिसाइक्लिक आपके पास कौन से होते हैं? दे आर द नॉन बेंजोनाइड मीन विदाउट बेंजीन रिंग. ठीक है? एंड दे आर sp3 हाइब्रिडाइज एंड हैविंग द 2 हाइड्रोजन लेस देन द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. अगर आप फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n. ठीक है? हमारे पास लेकिन सिंपल अल्केन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? CnH2n+2. तो हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं बाय द सिंपल अल्केन. और इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है
आप देख सकते हैं दैट इज़ साइक्लोब्यूटेन, दैट इज़ द साइक्लोहेक्सेन, दैट इज़ द साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नाउ कम टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? विच आर बेंजोनाइड साइकिल, जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, एंड दे आर sp2 हाइब्रिडाइज एंड दे हैव द alternate सिंगल और डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल्स आर द बेंजीन, टॉलिन एंड जाइलिन, जो कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर शो किए गए उसमें आपको दिखाया जा रहा है किस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है हमारे पास मौजूद हैं। ओके, नाउ कम टू द अल्केन। Alkane are those compounds which are saturated, which are also known as the paraffin, और ये वो compounds होते हैं जिसमें हमारे पास single bond होता है। ठीक है students, a little about the structure of alkanes. Alkanes are a homologous series of the saturated hydrocarbons. They contain only carbon-carbon single covalent bond. आई एम श्योर कि अभी तक आपको अल्केन के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। In an alkane molecule, all the outer electrons of each carbon are used in the forming the single covalent bond with 4 other atoms. Hence, alkanes are said to be saturated. इनको सैचुरेट क्यों कहा जाता है? कि हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस सारे के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अदर एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए इनको सैचुरेट कहा जाता है, बिकॉज they no further can add atom or group of atoms with them. Alkanes have the general formula CnH2n plus 2. Okay, students, if you remember in last lecture we stated about the homologous series of the alkene, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट भी कंप्लीट किया था। इसमें भी आप देख सकते हैं इन होमोलोगस सीरीज फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन इज़ द मीथेन, देन इथेन, देन प्रोपेन। और आप देख सकते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से होता है, दैट इज़ द इथेन। हमारे पास आप देख सकते हैं इथेन में हमारे पास कितने 2 कार्बन्स एंड 3 हाइड्रोजन है, इट्स मीन्स C2H6। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्यूटेन, तो अगर आप यहाँ काउंट करें तो हमारे पास C4H10 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज अगर हम देखें तो हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, और आपके सामने इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला भी शो किया गया। ओके, दैट इज़ अनदर स्लाइड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सफिक्स मीथ लिखा हुआ है, प्रीफिक्स मीथ लिखा हुआ है, और इसका सफिक्स जो है दैट इज़ द एन। ठीक है, तो इन तमाम के आपको यहाँ पे प्रीफिक्स बताए गए हैं, और सफिक्स में आपने ANE लिखना होता है। ठीक है, क्या लिखना होता है आपको? ANE, सिर्फ एन। ठीक है, इस वजह से इसको अल्केन कहा जाता है, ANE लिखना होता है आपको। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको कम्प्लीटली स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और इथेन का और प्रोपेन का स्ट्रक्चर, बाकी तमाम अप टू द ऑक्टेन आपको स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। नाउ कम टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइल। स्टूडेंट्स, ये आपकी लास्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको दोबारा रिकॉल करवाया जा रहा है कि अल्काइल आपके पास जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के साथ, व्हाट इज़ अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप हमारे पास अल्केन ही से निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 एटम रिमूव फ्रॉम द अल्केन, सो वी ऑब्टेन द अल्काइल। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्केन में क्या होता है फार्मूला? CnH2n+2, और अल्काइल में आपके पास फार्मूला है CnH2n+1। ठीक है, वो +1 क्यों हुआ है कि हमारे पास अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल फॉर्म होता है। नाउ यू मे सी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है अल्केन का दैट इज़ द मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़रा एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। आपके पास मिथाइल का फर्स्ट वन, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है? कार्बन के आपको पता है कि 4 बॉन्ड्स होते हैं, वो इस तरह से हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गए हैं, ये एक जो है आपके पास रिमेनिंग है। और ये रिमेनिंग क्यों है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम कुछ भी, मे बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी,
कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आके अटैच हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम अल्काइल ग्रुप में आपको यहाँ आपको एक डैश यानी कि बॉन्ड एक शो किया जा रहा है जो कि वेटिंग फॉर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। एंड नाउ कम टू द होमोलोगस सीरीज, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल एंड डिकाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके लास्ट जो चैप्टर है उसमें भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। नाउ कम टू द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मीथेन टू ब्यूटेन आर गैसेस, पेंटेन टू हेप्टाडिकेन। स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द हेप्टाडिकेन? हेप्टा मीन 7 और डिकेन हम किसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं? 10। इट्स मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द those hydrocarbon which containing the 17 कार्बन, ओके। हम उस कार्बन के उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कार्बन की तादाद होती है 17, ठीक है। दे आर लिक्विड इन स्टेट एंड हायर फ्रॉम द हेप्टाडिकेन आर सॉलिड. They are non-polar and weakly polar, soluble in the non-polar solvent. You know very well, they are non-polar. That's why they are dissolved and they are soluble in the non-polar solvent. Like dissolve like. You know very well the formula about the like dissolve like, क्योंकि ये non-polar है इसलिए non-polar solvent ही के अंदर dissolve होंगे. Melting and boiling point and density increase with increasing the atomic mass. ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल जो शुरू के आपके पास होमोलोगस सीरीज में है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज इन द एटॉमिक मास नहीं बल्कि यहाँ पे होगा इंक्रीजिंग बाय द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है स्टूडेंट, इसी करेक्शन कर लीजिए, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास नॉट एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद है सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सेम हियर, अगर आपके पास ये भी आपके पास है मॉलिक्यूलर मास, सॉलिबिलिटी आपके पास डिक्रीज होती है, जैसे आपके पास मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता रहता है आपके पास सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे भी आपके पास मॉलिक्यूलर मास आएगा, ओके। नाउ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ ईच मिथाइलिन ग्रुप। CH2 ग्रुप को किसको कहा जाता है? CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडिशन ऑफ द ईच मिथाइल ग्रुप, हाउएवर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन इज लोअर देन द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन, ठीक है। आपके पास जो ब्रांच चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और सेकेंडली थोड़ा सा वो हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी होता है, इस वजह से थोड़ा सा इनका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक और वजह भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ द वीक वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं हमारे पास ब्रांच फॉर्म में, इस वजह से भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्रांच चेन अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन द लीनियर अल्केन, okay, unreactive towards the acid, alkalis, oxidizing and reducing agent, that is the polar compounds under normal condition due to the sigma bond. वजह क्या है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से एंड नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से, ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये अनरिएक्टिव शो कर रहा होता है इन तमाम कंपाउंड्स के साथ, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। इसके अलावा अंडर सुटेबल कंडीशन, if we provide the temperature or absorption of light energy, it give the two types of reaction, thermal and catalytic reaction. Thermal mean वो reaction जिसमें हम लोग heat इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, heat वाले reactions होते हैं, and catalytic reaction you know very well, वो reactions जिनमें हम catalyst इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको catalytic reaction कहा जाता है। इसके अलावा और जो हमारे पास हो सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया जाए, ठीक है, रादर दे आर सैचुरेटेड। लेकिन अगर हम लोग कोई कंडीशन अप्लाई कर दें, हाई टेम्परेचर दें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दें, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Now come to the quick quiz. Which property enable carbon to form long chain and rings? Again listen. Which property enable carbon to form long chain and rings? What do you understand by the following terms? Paraffin,
olefins, aromatic hydrocarbons, and hybridization. Third question, what are alkyl radicals and how are they formed? Students, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दोबारा से मेरा ये लेक्चर देखें एंड आई एम श्योर आपको मेरे लेक्चर ही में से इसका आंसर मिल जाएगा इन तमाम क्वेश्चंस का. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़.